बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कंज्यूमरिस्ट कल्चर पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ना शुरू करें। The deep irony then is that while pockets of private prosperity are growing, there is an inexorable impoverishment of the resources that belong to the public realm. There is thus an amazing variety of sleek new car models to choose from, but the roads in our cities are in pretty bad shape and getting worse. Fashionable luxury resorts for the affluent are coming up everywhere, but lung spaces for public use, parks, and playgrounds are shrinking. It is much the same story with many other services in the public domain, including transportation, healthcare, libraries, and education. The trend is to push even the most essential services into the private realm so that some company or other can make a profit on them. In the process, the poor are being pushed into becoming consumers of increasingly expensive goods and utilities. Pockets, sections, parts, inexorable, cruel, कठोर, impoverishment, दरिद्रता, realm, क्षेत्र, affluent, अमीर, डोमेन, टेरिटरी या क्षेत्र। लेखक कहते हैं कि गौर से देखा जाए तो बहुत दुख होता है कि जहां एक तरफ अपर मिडिल क्लास की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उनकी लाइफस्टाइल बेटर होती जा रही है, वहां दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है और जो अभी हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। खरीदने के लिए एक से एक बढ़कर लेटेस्ट और एक्सपेंसिव गाड़ियां तो हैं, पर उन्हें चलाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और वे लगातार खराब होती जा रही हैं। छुट्टियां बिताने के लिए फैंसी रिजॉर्ट्स तो हैं, पर रोजमर्रा की सैर और खेल कूद के लिए पार्क्स और प्लेग्राउंड्स गायब होते जा रहे हैं। पब्लिक यूटिलिटीज और सर्विसेज जैसे यातायात, लाइब्रेरीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब भी लुप्त होती जा रही हैं। सभी एसेंशियल सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दी जा रही हैं मैक्सिमम मुनाफा कमाने के लिए। इस सब का नतीजा क्या हो रहा है? बेचारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को जबरदस्ती महंगी सर्विसेज और वस्तुएं खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आगे पढ़ें। Advertisers and marketing professionals are working hard to see that even people who live at the subsistence level in remote rural pockets are lured and entranced into becoming passive consumers of everything from cola drinks to shampoos. All they see is a vast rural market waiting to be opened up for commercial exploitation. We are fast approaching the day when it will be easier to get a bottle of Coke rather than tender coconut or buttermilk in most of our villages. The increasing presence of plastic garbage in our rural areas is a clear warning signal. Subsistence, guzar basar, lure, entice, फुसलाना, passive consumer, अप्रतिरोधी उपभोक्ता, entrance, मोहित, exploitation, शोषण, tender, delicate. Advertisers और marketing professionals क्या करने में जुटे हैं? वे लोग हर तरह की स्ट्रैटेजी, हर तरह का पैंतरा आजमाते हैं लोगों को कन्विंस करने में कि वे बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें और उन्हें कंज्यूम करें। यहाँ तक कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाने वाला गरीब आदमी जो गांव में एक सादा जीवन जीता है, उसे भी बहलाकर फुसलाकर वे शैम्पू और कोला जैसी वस्तुएं खरीदने पर विवश कर रहे हैं। उनके लिए सब बस एक बिजनेस है
उन्हें गांव की जनता अपने भावी कंज्यूमर्स दिखते हैं। बहुत जल्द वो दिन भी आ जाएगा जब हमारे प्रत्येक गांव में ठंडी छाछ और मीठे नारियल पानी की जगह कोका कोला की बोतलें ही मिला करेंगी। गांव में लगातार बढ़ रहे प्लास्टिक के कचरे इसी खतरे की ओर संकेत करते हैं। आगे बढ़ें। It is interesting to see the connection between all this and what is being drummed up as development by agencies like the World Bank, whose main objective is to make the way smooth for the unbridled expansion of the so called free market economy into every corner of the globe. Enthusiasts of this vision of development are dreaming of a day when all of India will look like the United States, with two cars in every garage and the reassuring glow of McDonald's and Pepsi signs all along every highway. The final confirmation of our reaching the promised land will come on the day the sheer tonnage of the garbage we throw out, plastic cups, junked cars, refrigerators, and TV sets, matches the levels of the land of the almighty dollar. When this happens, we will no longer be called a developing country, but will rejoice as the advanced West. Our teacher and role model finally certifies us as developed. It is to actualize this vision that millions of our youth are rushing to get their MBA degrees. Drum up, invent, try to increase business activity. Unbridled, absolute, belagam. Reassuring, restore confidence in. Actualize, यथार्थ करना। हम ये सब जो बदलाव देख रहे हैं, जिसे डेवलपमेंट नाम दिया जा रहा है, इसके पीछे कई एजेंसीज का हाथ है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। ये सभी एजेंसीज फ्री मार्केट इकोनॉमी को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देना चाहती हैं। इस आइडिया के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। हमारे देश में भी कुछ सपोर्टर्स हैं। वे लोग उसी दिन का सपना देखते हैं जब यूएस की ही तरह हर घर के आगे कम से कम 2 गाड़ियां तो खड़ी ही होंगी। पेप्सी और मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स अपने जगमगाते साइन बोर्ड्स की लाइट दूर दूर तक फैला रहे होंगे। हम भी सेकंड यूएस से तब बन जाएंगे जब उन्हीं की तरह टनों के हिसाब से प्लास्टिक कप्स, कबाड़ हो चुकी गाड़ियां, फ्रिज, टीवी आदि के रूप में कचरा हम रोज पैदा करने लगेंगे। सही मायनों में उस दिन इस बात का जश्न मना सकते हैं कि अब हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, एक डेवलप्ड नेशन है। हमारे रोल मॉडल यूएसए की तरह। इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए लाखों युवक एमबीए कर रहे हैं। यहाँ लेखक अपना क्रोध, अपनी लाचारी और अपना दुख व्यक्त करते हैं। उन्हें अफसोस हो रहा है कि हम अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं, बेवजह, बिना मतलब अमेरिका जैसे देश की नकल करके। आगे पढ़ें। But wait a minute. How practical is this vision? It has been estimated that to make this paradigm of development a reality for all of India and China, leaving aside other developing nations, the resources of planet Earth will prove horribly inadequate. We would need at least another 3 planets. It is clear then that this consumer paradise, aggressively marketed by the giant global corporations, will, besides paving the way for an ecological holocaust, prove to be, what an irony, the most unworldly vision of all, simply because it will have run out of worlds before it is fully realized. It isn't hard to see then that any model of development based on simulating high consumption lifestyles through aggressive advertising and limitless market expansion is not only unsustainable but also highly dangerous for the well being
of humanity. The price paid in ecological terms will make it the most suicidal enterprise the human race has ever embarked upon. We desperately need alternative models of development. It is not a wise thing to hand over businessmen the task of ruling the world, as we have just done today. Businessmen cannot be counted upon to have the wisdom or the will to think of the welfare of all humanity, leave alone the health of the planet. That is not part of the training of business administrators. They are mainly trained to do everything possible to maximize profits for the corporations that employ them. Paradigm मतलब मिसाल, example, Holocaust, प्रलय, सर्वनाश, simulating, अनुकरण, copy, enterprise, initiative, venture, embark, begin. लेखक कहते हैं कि क्या ये ग्लोबलाइज्ड न्यू वर्ल्ड का विजन वाकई प्रैक्टिकल है? बिल्कुल भी नहीं। यदि हम केवल इंडिया और चाइना को ही डेवलपमेंट मॉडल पर खरा उतारना चाहें, बाकी डेवलपिंग नेशंस को छोड़कर, तब भी इस धरती पर उपलब्ध रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, बहुत कम। हमें 3 पृथ्वियों के रिसोर्सेज को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर शायद कुछ काम बने। ये कंज्यूमर पैराडाइज, ये जन्नत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमें दिखा रही हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के माध्यम से अग्रेसिवली प्रमोट कर रही हैं, वो हमें और इस धरती को विनाश की ओर ले जाएगा। हमें इस मृग तृष्णा से बचना है। फैंसी प्रोडक्ट्स और हाई क्लास लाइफस्टाइल्स पूरी मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। ह्यूमन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट का कार्य हम व्यापारियों के हाथ में सौंप रहे हैं। भला कोई बिजनेसमैन मुनाफे के सिवा किसी और पहलू पर गौर करता है? उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। मानव जाति, मदर नेचर, इकोलॉजिकल बैलेंस से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग मिलती है केवल कंपनी के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की, और वे केवल वो ही करते हैं। आगे पढ़ें। The only way to restore sanity is for local communities, cooperatives, civil societies, and democratic governments everywhere to take back the autonomy and the initiative for their own development, which they recently traded away to the giant global business corporations. There is now a great need to reawaken the numerous enabling spiritualities and wisdom traditions of the various people of the world. Mahatma Gandhi once said that the earth has enough for every man's need, but not enough for every man's greed. All human beings have a right to the basic material requirements for a life of dignity. But there comes a point beyond which it is necessary to say enough to the merely material. Then one should turn to the commodities of the spirit, the arts, culture, community life, in order for life to be truly meaningful and sustainable. This is ultimately a spiritual and philosophical decision for both individuals and communities to make. Henry David Thoreau, the 19th century American philosopher, observed, "Superfluous wealth can buy only superfluities. Money is not required to buy even one necessity of the soul. One can only hope that humanity can muster up enough soul force to contain the damage caused by unrestricted consumerism, lest we really shop till we drop and nothing of value is left standing on our beloved Mother Earth." Autonomy, स्वशासन, सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज्यादा, मस्टर अप, इकट्ठा करना, सोल फोर्स,
स्पिरिचुअल एनर्जी, लेस्ट नहीं तो। लेखक कहते हैं कि इस पागलपन, इस ग्रीड को खत्म करने के लिए बस एक ही तरीका है। सभी लोकल कम्युनिटीज, कोऑपरेटिव्स, गवर्नमेंट्स उस अथॉरिटी को वापस अपने हाथों में ले ले जो उन्होंने अपनी नासमझी और अपनी लापरवाही के कारण बड़ी बिजनेस कॉरपोरेशंस के हाथ में दे दी थी। ये सोचकर कि वे मानव जाति के विकास और कल्याण में मदद करेंगी। पूरे विश्व में ऐसे कई थिंकर्स, कई फिलोसोफर्स और कई सोशल वर्कर्स थे और अब भी हैं जिन्होंने बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता की परंपरा को कायम रखा है। हमें उन्हीं स्पिरिचुअल आइडियाज और विजडम को अपनाना है। बापू ने एक बार कहा था, ये धरती सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है पर सबके लालच को नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सिर उठाकर जीने पर तो सबका अधिकार है। एक सादा और अच्छा जीवन जीने के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, हमें उतनी ही वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। लोभ का तो आखिर कोई अंत नहीं। हमारी स्पिरिट, हमारी सोल को जो नरिश करे, जैसे कि म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर, हमें इनका संग्रह करना चाहिए। इन्हीं से जिंदगी सार्थक और खुशहाल बनेगी। अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी थोरो ने कहा था, जरूरत से ज्यादा धन बेकार वस्तुएं, अनावश्यक वस्तुएं ही खरीद कर दे सकता है। हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए हमें जो चाहिए वो पैसा कभी खरीद ही नहीं सकता। अंततः लेखक कहते हैं कि भगवान करे मानव जाति को सद्बुद्धि आ जाए, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वो जागृत करे। बेलगाम कंज्यूमरिज्म के कारण जो क्षति धरती माँ को झेलनी पड़ी है, उसे आगे बढ़ने से हम रोक पाएं। ऐसा न हो कि आंखों पर चकाचौंध और लालच की पट्टी बांधकर हम अंधे कंज्यूमर बने रहें और धरती पर एक भी सही मायने में वैल्यूएबल वस्तु न रहे। यह पूरा होता है कंज्यूमरिस्ट कल्चर का पार्ट 2। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।